Okay, ji, Assalamu alaikum. Welcome to the class. And the last point from where we stopped in last class, that was related to quality criteria for the journals. We did discuss various types of publications. Um, एक कैटेगरी होती है कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस की और एक कैटेगरी होती है जर्नल पब्लिकेशंस. So I showed you the research process in which we saw that for completing the formal research, we need to have some steps. That includes, first of all, finding the problem, then finding related solutions, ultimately finding gaps. From gaps, you figure out your own proposed solution, and then you implement it, do a comparison, and give conclusions, future work. The formal research is all based on the published stuff. Informal research is done every day, every time. Everyone out of us is doing some research, trying to find a solution informally. But that is, or that cannot be counted towards your thesis research or master's thesis research. Formal research requires, um, again, finding a solution to a problem, but in a way where you go and see existing solutions, read them, find how they are doing the similar solutions, similar situations, how they are dealing similar situations, ultimately finding out uh, what could be the further improvements, further optimizations which can be done and get a better solution than the previous ones. And based on those gaps, you propose your solution. But everything starting from finding the problem till figuring out its solutions and putting up your solution should be based on published research papers. That is what is very important. We also discussed what could be the various possibilities of finding the problem first. We saw that there could be three different possibilities. You either find a problem from your experiences, you could find a problem based on buzzword or the existing technologies, or you read in newspapers, you see in the print media, or you listen from the digital medias. And there could be third way where you figure out a supervisor or a teacher who is teaching you, and he or she is doing some research already into that area, and you try to find out a problem from him or her. So based on these different approaches, everyone was tasked to find out a problem जिसका solution आपने propose करना है और एक broad area figure out करना है. So up till now, as far as my understanding is concerned, आप में से सब लोग जो हैं वो अपने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं based on whatever subjects you have studied, whatever experience you have, or whatever knowledge you have gathered from various platforms. So वो सारी चीज़ें देखते हुए आपने एक एरिया शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उस पर आपने फिर रिसर्च पेपर्स फिगर आउट किए हैं, उनको आप पढ़ रहे हैं. रिसर्च पेपर्स जो पढ़ रहे हैं उसके लिए हमने फिर बात की थी कि देयर कुड बी वेरियस प्लेटफॉर्म्स विच कुड बी यूज्ड टू फाइंड आउट दी रिसर्च पेपर्स. उसमें हमने कहा ओके जी, बिकॉज यू आर फ्रॉम कंप्यूटिंग डिसिप्लिन, सो a better way is to not search on the Google Scholar but to go and find out specific search engines. और उसके अंदर हमने कहा जी ओके, there could be big names which are the good publishers, renowned publishers. So they have their own digital platforms where you can find out the related research papers. उसमें हमने डिस्कस किया जी कि IEEE जो बड़े नाम है उनमें एक बड़ा नाम IEEE का है. इसके अलावा IET का है, टेलर्स एंड फ्रांसिस का है, स्प्रिंजर का है, एल्सवेयर का है, हिंदावी का है, MDPI का है, विले या वाइली का है. तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि अच्छे पब्लिशर्स काउंट होते हैं, और ये बहुत सारे काम करते हैं. ये कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, ये जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं, ये रिसर्च एक्टिविटीज भी कराते हैं, और ये सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पे भी काम करते हैं. इनमें जो कुछ मैंने प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस किए, लाइक IEEE का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम IEEE डिजिटल एक्सप्लोरर है या IEEE एक्सप्लोरर है.
जो एल्सवेयर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो साइंस डायरेक्ट के नाम से है। आपने कुछ सर्च करना है वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, उसको आप फिल्टर कर सकते हैं, उसके अंदर अपने आप अपने पर्सपेक्टिव से चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। जर्नल्स को देखना है, कॉन्फ्रेंसेस को देखना है, किसी खास रेंज ऑफ ईयर्स को देखना है, टाइप ऑफ पब्लिकेशंस को देखना है, कुछ खास ऑथर्स को देखना है। तो साइंस डायरेक्ट इज अगेन अ बिग प्लेटफॉर्म। फिर हमने कहा एसीएम जो एक प्लेटफॉर्म है, एसीएम जो एक पब्लिशर है, उनकी डिजिटल लाइब्रेरी, एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे अब कंप्यूटिंग के बहुत सारे पेपर्स वहाँ भी नजर आएंगे। अम, तो ये तीन बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर चीज़ें जो सर्च की जा सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, देखते हैं उनको अब डिस्कस करें और फर्दर जो है फिर हम विल सी के इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। बट ये अगेन प्लेटफॉर्म से आपने रिसर्च पेपर जब सर्च किए तो अगेन दे कुड बी कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज द कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड सेकंड इज द जर्नल पेपर्स, राइट। ओके जी। सो अगर ये हमारी दो डिफरेंट कैटेगरीज हों तो इस कैटेगरी के अंदर हमने कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में फिर बात की। कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में हमने कहा जी कि क्या होती है इनकी, इनका रिव्यू प्रोसेस, सबमिशन प्रोसेस क्या होता है। कुछ हमने पेजेस खोल के देखे कॉन्फ्रेंसेस, कुछ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस डिस्कस की लास्ट क्लास में। एक वर्चुअल टूर भी किया कि किस तरह से कॉन्फ्रेंस जो है उसका प्रोसेस पूरा किया जाता है। और फिर पब्लिकेशंस किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आती हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में हमने कहा। फिर हमने कहा जी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो क्वालिटी पेपर्स हैं उनके क्राइटेरियाज कुछ हैं। हमने डिस्कस किया जी कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हों दे आर कंसिडर्ड गुड कॉन्फ्रेंसेस, नंबर वन। नंबर टू ये कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो कि किसी डिजिटल, किसी बड़े प्लेटफॉर्म या किसी बड़े बैनर के नीचे हो रही हो, लाइक आई ट्रिपल ई के नाम से हो रही हो, एल्सवेयर के नाम से हो रही हो, स्प्रिंजर के नाम से हो रही हो, एमडीपीआई के नाम से हो रही हो। तो ये वो बड़े नाम है जो कि फिर ये इंश्योर करते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी सम क्वालिटी एस्पेक्ट embedded within that conference. They do not allow just submission and acceptance. They pass it through a review process, ensure that some minimum threshold of quality is ensured. And once the papers are published, then they are of some good quality, and anybody who is going to read them, they would get some information out of it या कुछ knowledge from it. हमने ये भी देखा था कि कुछ बहुत सारी या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि फेक प्लेटफॉर्म्स हैं, या उन्हें हम कहते हैं कि जी दे आर दी, उनको पेपर मिल्स के नाम से याद किया जाता है कि देर आर पॉसिबल एवेन्यूज जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस के अंदर यू सेंड अ पेपर एंड विद इन फ्यू आवर्स योर पेपर मे बी एक्सेप्टेड। सो ऐसे एवेन्यूज को अवॉइड करना, उनको फिगर आउट करना, उनके बारे में पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि जी बड़े आराम से रिसर्च पेपर लिख लिए जा सकते हैं, देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स। हमने एक एमआईटी का प्लेटफॉर्म भी डिस्कस किया क्लास में कि उसके ऊपर आप सुटेबली सिर्फ अपने नाम इंसर्ट करें तो आपको रिसर्च पेपर जनरेट करके दे देता है, बट इट हैज़ गॉट नो कनेक्शन विद इन इट्स कॉन्टेंट। हम वो भी देख चुके हैं। सो ये कुछ सारी चीज़ें हमने पिछली 3-4 क्लासेस में कवर की हैं। मैंने एक दफ़ा दोबारा इसलिए रिपीट की कि आज मुझे कुछ नए चेहरे और नए नए नाम नज़र आ रहे हैं। तो आई थॉट इट इम्पॉर्टेंट कि एवरीबडी शुड बी अलाइंड विद दी course content. What my request would be that the lectures of the previous 3 weeks are already uploaded on YouTube and the links have been shared on the group. If you do not have access to those links, I'll share it again today from the first week, and you can just go and watch them again and make your notes. The requirement of the subject is to see the lecture, attend the lecture, एंड अल्टीमेटली राइट इट्स समरी। आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या मेजर पॉइंट्स आपने जो ना वो आपकी समझ में आए। तो ये बाय दी स्टार्ट या बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास हर स्टूडेंट ने शेयर करना है वो समरी विद दी क्लास सीआर, जो कि हमने मैडम अलीना को क्लास में हमने क्लास सीआर बनाया था। सो ये मेरी रिक्वेस्ट हर एक के साथ है कि वो अपने लेक्चर्स को ज़रूर देखें और अपने प्रीवियस अगले लेक्चर से पहले पहले उनकी समरीज जो है वो सबमिट कर दें। सो दिस इज द फिफ्थ वीक, आई थिंक 4 वीक्स क्लासेस हो चुकी हैं। उनमें से एक वीक क्लासेस हमने जो शुरू में ली थी दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, वो रिकॉर्डेड नहीं था। सेकंड रिकॉर्डेड था। थर्ड डॉक्टर आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर एहसन सगीर, उन्होंने वो क्लास कंडक्ट की थी, उसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। एंड देन द थर्ड वन व्हिच वाज द प्रीवियस वीक, इट वाज कंडक्टेड बाय मी, उसके भी लेक्चर्स अपलोडेड है। तो 3 वीक्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो मैं लिंक शेयर कर लूंगा। और आज आपका जो फोर्थ फिफ्थ वीक का लेक्चर है वो आज हम कंडक्ट करेंगे। बट वट एवर वी डिस्कस्ड, आई हैव गिवन अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग इन दी फर्स्ट
5 to 10 मिनट्स जो भी हमने बातें की हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप में से स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं, डिस्टेंस लर्नर्स नहीं हैं, दे मस्ट अटेंड द क्लास इन कैंपस। They will not be graded for attending the class online because this is what the principle is. Because class attendance is very important. Face to face interaction is very important. Right? Otherwise तो हम अल्लामा इकबाल में आप ज्वाइन कर लें तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। तो इधर अगर आ रहे हैं तो आप जरूर क्लास में आए। कभी कभार कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो दैट इज समथिंग एल्स, बट मेकिंग इट रेगुलर रूटीन इट वुड नॉट बी अलाउड। So I'm very strict on this. Whosoever is on campus student, the list is with me. I'll share it with the in the group as well. List of on campus student must attend class on campus. ठीक है? So this is as far as the premise is concerned. Anybody is having any question from the uh, class, from the on campus जो भी बैठे हुए हैं या जो इस वक्त आप में से ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, दे कैन आस्क मी फॉर क्लैरिटी फर्स्ट एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड विद द कंटेंट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। जी, एनीथिंग फ्रॉम बिलाल, हमजा? सर थैंक यू वेरी मच। हमने सर पिछले लेक्चर्स जो हैं वो कम्प्लीटली कवर किए हुए हैं। वी हैव वॉच्ड द वीडियोस एंड आल्सो शेयर्ड द नोट्स विद द सीआर। ओके, आप दोनों जो पीएचडी स्टूडेंट हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू एन एक्स्ट्रा माइल ड्यूरिंग दिस सब्जेक्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस सब्जेक्ट इन मास्टर्स एज वेल. So I'll be taking you with some extra assignments. So be ready for those things as well. सर श्योर विल डू इट सर। ठीक है जी. श्योर सर, रेडी हैं सर। बाकी लेक्चर्स मैंने भी ले लिए हैं और नोट्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं। लेक्चर 3 जो है डॉक्टर एहसन सगीर का, वो मैं उसको भी करूँगा। वो रह गया है, वो मैं करके आपको फिर उसके भी नोट शेयर कर दूंगा सर। बिल्कुल ठीक हो गया जी. सो वी विल डिस्कस. आपने, बिलाल ने और हमजा, आपने मुझसे क्लास के बाद जो है ना वो एक एडिशनल भी डिस्कशन सेशन में रहना है ताकि वी कुड राइट। कंटिन्यू विद योर टॉपिक सिलेक्शन in this subject because I would be interested कि during this particular subject completion your titles must be decided and you should start working on those titles so that we could uh, fix some time for your proposal defense as well and make your graduate student committee for the PhD work and you can start working after that. I believe these are your last subjects in this semester. आपके 6 subjects पूरे हो जाएंगे. सर ऐसे ही जी है। सर। और यस सर। नंबर 2 ये कि जो आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उसमें आपसे रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने कुछ एडिशनल ऑनलाइन सोर्सेज पे भी अपने कंटेंट को कवर करना है. लाइक जो इधर अभी कोर्स कंप्यूटर विजन का पढ़ाया जा रहा है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द एमएस स्टूडेंट बट फॉर यू वी फाइनलाइज सम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वेयर यू विल डू सम ऑफ द एक्स्ट्रा कंटेंट एंड गेट द सर्टिफिकेट्स. इज इट? सर बिल्कुल ऐसे ही हम कर रहे हैं सर। ऐसा ही है सर, ऐसे ओके, ही है सो सर। यू मस्ट शेयर दोज थिंग्स विद मी सेपरेटली कि क्या कर रहे हैं आप उसके अंदर और उनमें किस हद तक आपने कंटेंट कवर किया है. सर बिल्कुल ठीक है ठीक। सर, इंशाल्लाह। ठीक हो गया. एंड सिमिलरली जो लास्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनकी भी कुछ डिटेल मुझसे शेयर कीजिए कि आपने क्लास में क्या किया और एक्स्ट्रा चीज क्या कवर की है सो दैट आई शुड गेट सम समरी फ्रॉम योर साइड व्हाट ऑल हैज बीन डन. राइट सर। सर श्योर सर। ठीक है. सो दिस जी आर सर। टू पीएचडी स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड और बाकी जो हैं उनके साथ वी विल कीप इन टच एज द रेगुलर कंटेंट. जब क्लास खत्म हो तो उसके बाद पीएचडी स्टूडेंट वुड स्टे देयर एंड वील हैव सम एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशन. सर ओके जी. सो अदर देन हमजा एंड बिलाल, रेस्ट जो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, आपका कोई अब तक की क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन फर्स्ट क्लैरिफाई एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. नो कंफ्यूजन, इट मींस ऑल फाइन. अलीना, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो समरीज हैं वो आपने गैदर करके जिप फोल्डर में मुझसे शेयर कर लेनी है आज शाम तक. जी सर, मैंने कलेक्ट कर ली थी। मैं आज आपको शेयर कर दूंगी जी. शाम में। और सेकेंडली आप पीजी कोऑर्डिनेटर मोहसिन साहब से क्लास की एक लिस्ट भी ले लीजिए, उसमें उनसे इंडिकेट करवा लीजिए कि कौन कौन डीएल स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं, वो भी आपने शेयर मुझसे लिस्ट करनी है. ओके सर, ठीक है। ओके। ओके जी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके. सो जो आज की चीज़ हमने एक्स्ट्रा कवर करनी है, इनफैक्ट दैट इज related to now the quality criteria for the journal papers, and first of all what journal papers are and maybe what are the indexation agencies या third party certifications for
पब्लिकेशंस, कि उनको खुद तो अच्छा हर कोई बंदा डिक्लेयर कर देता है कि जी मेरा मेरा काम बहुत अच्छा है, बट देयर मस्ट बी somebody who doesn't know you and still can figure out from your published work कि ये काम जो है वो अच्छा काम है, राइट? फ्रॉम दोज डोमेन्स, सो कॉन्फ्रेंसेस के बारे में वी आर वेरी क्लियर। कॉन्फ्रेंसेस के जो हमारे क्वालिटी क्राइटेरिया हैं उनमें मल्टीपल टाइम अपीयरेंस ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, यानी पिछले 10 साल से, 15 साल से, 40 साल से वो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही होती है, नंबर वन। नंबर टू, उसका एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रेट एक हो, दैट इज द सेकंड क्वालिटी क्राइटेरिया के रिजेक्शन रेट है, यानी सारे पेपर एक्सेप्ट नहीं होते बल्कि कुछ रिजेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन दी रिव्यू प्रोसेस। एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू प्रोसेस है जिसके तहत सिस्टम जो है उसको जज करता है, अगेन अनदर क्वालिटी क्राइटेरिया। कुछ कॉन्फ्रेंसेज आजकल ऐसी आ रही हैं या बना दी गई हैं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, या 100% एक्सेप्टेंस होती है कि जी आप बस पेपर अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजिए, आइडिया भेजिए और इस तारीख को कॉन्फ्रेंस है। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेज अगेन अच्छी नहीं होती। फिर उनके डिजिटल प्रिंट्स जो हैं अगर वो बाद में अवेलेबल हो रहे हैं किसी एक्सप्लोरर पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्राइटेरिया है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो अच्छी होती हैं। इसके अलावा बड़े बैनर के नीचे हो रही हैं, अगेन दैट इज अनदर वे ऑफ कॉलिंग इट अ गुड कॉन्फ्रेंस। And the last thing which is important to decide about a conference is that they are also indexed by some of the third party platforms. Yes. तो जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि पेपर्स को या किसी एक कॉन्फ्रेंस को या जर्नल को वेट करते हैं और उनकी उनकी क्वालिटी को के तहत उनको इंडेक्स करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड में लेके आते हैं, यानी से रिकॉर्ड कर लेना कि जी ये एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है। उस मकसद के लिए जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो तीन हैं, एक का नाम है स्कोपस, एक का नाम है वेब ऑफ साइंस और एक का नाम है पबमेड। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस जो है अगर वो चाहे तो इन प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवली एक्सेस करके अपने कुछ एस्पेक्ट्स को सबमिट कर दिए और ये प्लेटफॉर्म जो है उनको फिर अपने पास इंडेक्स कर लेते हैं या रजिस्टर कर लेते हैं। तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी है तो इट मीन्स कि इट इज इवन अ बेटर कॉन्फ्रेंस, बिकॉज एवरी कॉन्फ्रेंस इज नॉट इंडेक्स्ड, ऑल्दो बाकी पैरामीटर पूरे हो रहे होंगे बट इंडेक्सेशन नहीं होगी। तो जो इंडेक्सेशन में जाती हैं कॉन्फ्रेंसेस उनकी क्वालिटी इवन बेहतर होती है। ठीक है, तो ये भी एक चीज अपने जहन में रखनी है। अब हम आते हैं जर्नल पेपर्स के ऊपर कि जर्नल पेपर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड मे बी इट कुड हेल्प सम थिंग्स फ्रॉम देयर वी कुड रीड एंड स्टडी समथिंग। Okay, so now there is a slide which must be visible to you, और अगर स्लाइड को अगर आप देखें तो it states that what could be the reason of publishing your work or your results. So जब आप कोई नई चीज़ कर लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिसकी किसी और को बताने की ज़रूरत है, तो उस वक्त people they try to find out some platforms and share it with the with those peoples, like all of us, yeah, some people out of us will be going for this, and the aim would be to present our results and methods to the research community, maybe to get some ideas, to get some comments, so that we can improve our work. Maybe our work is not exactly, yeah, very correct, yeah, I would say very perfect. So rationalization का मतलब ये होता है कि people will comment on that, या people will publish the alternate counter papers by which we could get an idea that there is sort of improvement which is possible and that could be done. So rationalize our published result is also a purpose. And again, sometimes we present the we go and write down the reviews of some field and try to summarize certain area. बट जो इन सब का जो मेन मकसद है पब्लिकेशन का, वो सिर्फ पब्लिश करना नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है जिसमें एक रिसर्चर ने आना होता है। जो भी रिसर्च की डोमेन में लोग आते हैं वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आते।
मेन पर्पस ऑफ वर्ल्ड या ग्लोबल ट्रेंड ये है कि जो एक रिसर्चर होता है वो डेवलपर भी होता है, या उसका असल काम डेवलप करना होता है। यानी उसने एक आइडिया तो दिया थियोरटिकल, बट उसको प्रैक्टिकल रंग और रूप देने के लिए भी उसी ने काम करना है। तो उस मकसद के लिए जब वो जाएगा अपने काम को, मैथमेटिकल काम को, थियोरेटिकल काम को, एक्सपेरिमेंटल काम को, उसकी बेस पे कोई प्रोडक्ट डेवलप करेगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई हार्डवेयर बनाएगा, कोई किताब लिखेगा। यानी तीन किस्म के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। वन मे गो फॉर दी for software development. One may go and opt for the hardware development. एक नया एयर कंडीशनर बनाने जा रहे हैं, एक नया जो है वो पावर प्लांट बनाने के लिए आपने थियोरेटिकल काम किया था तो आप उसको पावर प्लांट की स्टेज पे चले गए। आपने एक नया डेस्क बनाना है, आपने एक नई कुर्सी बनाना है, आपने एक नया मकान बनाना है। सो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्रोडक्ट्स डिफरेंट नेचर की होंगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट्स डिफरेंट नेचर की होंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट्स डिफरेंट नेचर की होंगी, कंप्यूटर साइंस में प्रोडक्ट्स डिफरेंट नेचर की होंगी, इस तरह मैनेजमेंट साइंस में डिफरेंट नेचर की प्रोडक्ट्स होंगी, ह्यूमैनिटीज में अलग नेचर की प्रोडक्ट्स होंगी। जो बेसिक साइंसेज वाले हैं वो बेसिक रिसर्च करके कोई एक किताब लिखना चाहेंगे, कोई एक एनालिसिस करना चाहेंगे, तो वो एक नॉलेज प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिए उस रिसर्चर को फंडिंग चाहिए होगी, ग्रांट्स चाहिए होगी। तो जो ग्रांट लिखनी है उसका ताल्लुक भी लिखने से है। तो जब लिखना आपको पहले आता होगा, रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, तो आप ग्रांट का तरीका भी लिख सकते हैं। सो ग्रांट्स के जो 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 आप कहें कि टेम्पलेट्स हैं, दे आर ऑफ द सिमिलर नेचर एज योर प्रपोजल टेम्पलेट्स। जो रिसर्च प्रपोजल आप लिखोगे उसी तरह का आपको टेम्पलेट नजर आएगा एक ग्रांट प्रपोजल का भी। So the people who write research proposals, in the next stage, they go and write the research thesis. From research thesis, they write research papers. And after research papers, they have ample amount of information to write grant proposals. Right? So grant proposals लिखते हैं, और grant proposal को जब evaluate किया जाता है by funding bodies, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, वो आपके प्रपोजल को जज करती हैं मोस्टली बेस्ड ऑन योर रिसर्च पब्लिकेशंस, के हाउ यू हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग योर रिसर्च करियर्स। अगर आपने अच्छे पेपर्स लिखे हुए हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च डोमेन, तो आप डेवलपमेंट में भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रहेंगे। इसलिए इस साइकिल में आने के लिए रिसर्च पेपर्स लिखना जरूरी होता है। ठीक है, और रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए रिसर्च थीसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, so it would be tougher for anybody to write research paper straight away without doing a research thesis. इसलिए रिसर्च थीसिस जो है उससे आप एक स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ते हुए आप आते हैं और रिसर्च पेपर्स के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, अजान हो रही है, लेट जस्ट लिसन टू दिस एंड देन वी कैन स्टार्ट। जी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो मैंने कहा जी कि रिसर्च पेपर्स का लिखने की एक वजह है, या उनको पढ़ने की वजह है। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे नहीं तो आप रिसर्च पेपर लिख नहीं सकते। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे नहीं तो आप रिसर्च प्रपोजल लिख नहीं सकते। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे नहीं तो आप रिसर्च थीसिस लिख नहीं सकते। राइट? सो जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, रिसर्च थीसिस लिखेंगे, तो खुद रिसर्च पेपर्स लिखेंगे। जब रिसर्च पेपर्स लिखेंगे तो आप ग्रांट प्रपोजल्स लिख सकेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली आपको वो पैसे मिलेंगे, जिसका फायदा उस रिसर्चर को भी होता है। अल्टीमेटली समथिंग गोज टू योर पॉकेट एज वेल बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। और वो एक चीज जो आप बना रहे होते हैं उससे एक रिसर्चर को दिली खुशी होती है, बिकॉज क्रिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ स्पेशल हार्मोन आपके दिमाग से निकलता है कि जी, कि आपको ना एक एड्रेनलिन इफेक्ट देता है। यू फील गुड बिकॉज दिस क्वालिटी इज विद द गॉड।
क्रिएशन इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, बट जब इंसान ऐसी कोई क्वालिटी मैच करता है जो कि अल्लाह की क्वालिटी है, तो उसके अंदर कुछ एक डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, उसको वो अच्छा लगता है, ही और शी फील्स गुड। सो दैट इज वाई क्रिएटिव होना जो है वो एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है या क्वालिटी है, ब्लेसिंग है, तो हर एक में नहीं होती है। तो ये आप लोग हैं जो कि इस एरिया की तरफ सोच रहे हैं, या इस तरह कुछ आपके दिमाग में चीज़ अब आ रही है या आपको पढ़ाई जा रही है, ये बहुत कम लोग इस तरह से इस तरफ डोमेन की तरफ आते हैं। तो क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव से ही हमने सोचना है कि पेपर्स पे भी काम करें और अल्टीमेटली किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइट पे भी जाएं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से कौमें तरक्की करती हैं या आगे जाती हैं, मैंने एक स्लाइड लास्ट क्लास में दिखाई भी थी कि रिसर्च जो है उसके करने का मकसद है मोर जॉब्स। एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा था कि जी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं रिसर्च करने की, बट दुनिया में जो फंडिंग्स दी जाती हैं उनके पीछे जो बड़ा फिनोमेना है वो है कि जी जो गवर्नमेंट्स पैसा देती हैं, दे गिव यू मनी बिकॉज दे वांट मोर जॉब्स। लेट मी शो दैट स्लाइड फर्स्ट एंड देन वी कैन जस्ट, बिकॉज मे बी पुराने स्टूडेंट्स ने सुना देखा, मैं ये स्लाइड यहाँ दिखाता हूँ। दिस वॉज द स्लाइड, लेट मी शेयर इट with the class as well. और जी आपको विजिबल है जी स्लाइड, ये क्लास वालों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं? यस यस सर, सर विजिबल विजिबल है है। सर। ओके जी। सो दिस शोज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड अल्टीमेटली जो रिसर्च की डेफिनेशन को अगर आप देखते हो तो इसका मकसद ये है कि टू डू दी डिस्कवरी, प्राइमरी एम इज टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स इंफॉर्मेशन, and once those things are there, based on that you can do something which is useful for the society, right? So reasons जो है possible reasons, ये बहुत सारी reasons। अब एक आपके ना छोटे लेवल पे माइक्रो लेवल पे इनमें से कोई भी वजह आपके दिमाग में आती होगी कि जी मैंने रिसर्च इसलिए करनी है कि मुझे कोई खुशी होती है, या मुझे कोई शोहरत मिल जाएगी, या मेरा इंटरेस्ट है, या मैंने कोई नई नॉलेज गेन करनी है। लेकिन एक बड़े बड़े लेवल के ऊपर इकोसिस्टम जो है ना बना हुआ रिसर्च का, वो है टू क्रिएट मोर जॉब्स, बिकॉज रिसर्च कॉजेज द डेवलपमेंट। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नबी, मोहम्मद नबी। रिसर्च से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। डेवलपमेंट से ये होता है कि जब आप डेवलप करते हैं, किसी को दिखाते हैं ये मैंने चीज डेवलप की है, तो कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कि यार ओके समथिंग न्यू इज बीइंग क्रिएटेड, सो बिजनेसमैन वुड बी, the entrepreneurs, the business people, they will like to invest in that domain। वही जो रिसर्च फंडिंग बॉडीज हैं, और अल्टीमेटली उस फंडिंग के नतीजे में नई प्रोडक्ट बन जाएगी, कोई नई प्रैक्टिस मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, आपने व्हाट्सएप नया बना दिया, देखें व्हाट्सएप जब मार्केट में आया तो एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, इट इज कॉल्ड डिसरप्टिव इनोवेशन। लोगों के सोचने का तरीका चेंज हो गया। पहले आप सेलुलर फोन्स पे कॉल करते थे, अब आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, तो ऑल टुगेदर सारे मैसेजेस एवरीथिंग रिकॉर्ड कीपिंग, यानी इस हद तक लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। सो इस तरह की जो नई चीजें, नई इन्वेस्टमेंट्स, नई इनोवेशंस हैं, दे ब्रिंग इन कंज्यूमर प्लेजर। लोग खुश होते हैं, जब वो खुश होते हैं तो ज्यादा लोग उस पर आते हैं, तो क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। आप एक यूजर व्हाट्सएप को यूज करे और 1 बिलियन यूजर यूज करें, हर एक का कुछ ना कुछ एडवांटेज जा रहा है और कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो क्या होगा, कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देगी, ज्यादा लोग हायर करेगी ताकि ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर सके, सो दैट मोर जॉब्स वुड बी क्रिएटेड, ज्यादा नेशनल प्रॉफिट आएगा, और अल्टीमेटली दैट वुड go towards more research। So this cycle is in fact a cycle which is there in the mind of the governments। So government क्या क्यों ये काम करती है, क्योंकि उनके पास एक जीडीपी की एक टर्मिनोलॉजी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट जो होती है, ये उनकी किटी में वो पैसा होता है जो हर खर्चा करने के बाद बच जाता है। आपने कुछ कमाया, कमाने के लिए आपने कमाने के बाद आपने खर्च किया, आपने, आप अपनी एग्जांपल लें, हर इंसान की एक जीडीपी होती है। आपने पूरे महीने मेहनत की, कोई बिजनेस किया या कोई आपने कोई जॉब की, आपको वो मेहनत करने के नतीजे में कुछ पैसे मिले, उसके बाद आपने उससे अपने कपड़े खरीदे, आपने बिजली के बिल दिए, आपने खाने पीने ग्रोसरी का बिल पे किया, अब उसके बाद भी आपके पास कोई पैसा बच गया महीने के एंड पे, दैट इज योर जीडीपी विच यू कैन यूज फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एनीवेयर वेयर यू वुड लाइक। आप कोई कुछ और नई चीजें उससे ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। एवरी गवर्नमेंट हैज अ जीडीपी।
जो दुनिया की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, अगर उनको हम देखते हैं तो उनकी जीडीपी अगर आप देखते हो तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट विच दे आर सेविंग. Like USA is topping this list. They have around 27,000 billion US dollars saved at the end. 27,000 billion US dollars, right? And per capita around $80,000 एक बंदे के पास बच रहा होता है by the end of year, which he can or she can spend on personal whatever they feel like. इस तरह चाइना, जर्मनी, जापान, and you can see India as well. India has been progressing at fast pace for the last 10 years. और अब उनका अगर आप जीडीपी देखते हैं 2022 का डाटा है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. थोड़ा सा लेट आता है इसलिए एक साल बाद ही मिलता है. तो तकरीबन 4,000 यूएस बिलियंस डॉलर उनका पैसा बच रहा है, जिसको वो खर्च कर सकते हैं अपने लोगों पे या कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, उनकी मर्जी है. सो दीज आर दी 10 कंट्रीज. और अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या हम अपने लिहाज से थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करें तो हमारा जो साल का बजट है, पिछले साल का जो हमारा बजट था, दैट वाज 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, 50 बिलियन डॉलर. होल बजट. होल बजट, सेविंग नहीं है ये, होल बजट, सेविंग पे भी आते हैं. तो 50 बिलियन डॉलर. और अगर आप पिछला देखो जो हमने बात की, 27,000 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि उनका पैसा बच रहा है. जो बजट होगा वो तो इसके भी शायद 50 गुना होगा. So there is a huge amount of effort which they have put in. खैर, अगर हम R&D स्पेंडिंग की बात करें, अगेन डाटा को अगर हम देखें, जो अगेन वर्ल्ड बैंक का डाटा है, 2022 का डाटा है ये, तो इसमें आपको अगेन यूएस, बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ किटी लेफ्ट विद देम एट द एंड, दे आर स्पेंडिंग अकॉर्डिंगली. तो वो जो 27,000 यूएस डॉलर बच रहा है उनके पास, उसमें से 660 बिलियन डॉलर वो खर्च करते हैं R&D के ऊपर. क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा जो है अल्टीमेटली it would return back to my economy, to my culture, to my society. सर ये आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? वो गेस्ट के घर पे उस वजह से पहले ऑनलाइन भी किया था, फिर अच्छा. मैं आ गया. नहीं, लेकिन इस तरह काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए चीज़ें रिपीट तो नहीं करूंगा. बिल्कुल सर, वो ऑनलाइन सिखाएगा जब मैं बाकी तो नहीं. मुझे ये चीज़ सख्त बुरी लगती है कि क्लास में एक स्टूडेंट जो है ना वो लेट है. जी जी. मैं आपको नेक्स्ट मतलब टाइम बड़ा क्लियर बता रहा हूँ. यू कैन डिले योर कोर्स, अगले सेमेस्टर में ले लें अगर आपने यही करना है, क्योंकि 5वीं में मुझे तो आज तक आप नजर आए नहीं है. आज भी आप 2 घंटे बाद आ रहे हो. दिस गिव्स वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट योर सीरियसनेस. क्या ख्याल है? सर नेक्स्ट टाइम आप खुद भी टीचर हैं माशाल्लाह, अगर आपकी क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो, जी जी, तो मतलब मुझे तो ये सख्त बुरी लगती है. मैंने इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दिया. नेक्स्ट क्लास में अगर आप किसी क्लास में लेट हुए, आई विल टॉक टू द पीजी कोऑर्डिनेटर, आई विल कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन. ठीक है जी. ओके जी. सो R&D पे एक्सपेंडिचर जो है 660 बिलियन यूएस डॉलर्स आउट ऑफ 27,000 यूएस डॉलर्स. और इस तरह से बाकी मुल्क भी जो अगर आप देखते हैं, और वही जो पहले 10 इकोनॉमीज हैं वो आपको टॉपिंग ऊपर आते नजर आ रहे हैं. लेकिन इंडिया अगर आप देखो 4,000 बिलियन डॉलर बचाता है, उसमें 160 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करता है R&D के ऊपर. हमारा बजट 50 बिलियन डॉलर है, वो 160 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, विच इज, अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो 5.6% ऑफ जीडीपी है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो दुनिया की इकोनॉमीज हैं वो 2 से 3% खर्च करती हैं जीडीपी का, 2 से 3% R&D पे लगाती हैं. लेकिन जो ऐसे मुल्क हैं जो कि चाहते हैं कि फास्ट पेस पे तरक्की करें, वो उसको ऑलमोस्ट डबल पेस पे लेके चलते हैं. लाइक यू सी इंडिया, इट इज गोइंग एट अराउंड 6%, जो कि बाकी दुनिया से 2 गुना 3 गुना ज्यादा है. नजर आ रहा है ना? और बिल्कुल यूएसए से भी ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा है उनका. ठीक है. और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी में जो एक ग्रोथ आई है पिछले कुछ अरसे में, वो बहुत फास्ट पेस पे इसी वजह से आई है कि दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ द R&D सेवी इन्वायरमेंट. R&D आई वुड से कि रिसर्च की के लिहाज से एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक इकोसिस्टम बना दिया गया. तो इफ यू कैन ऑब्जर्व ऑल ऑफ देम. और अगर हम इसमें आगे चलते जाएं, यू सी हेयर कि नंबर 19 पे इसराइल है. इसराइल भी अगर आप देखो तो 6% तकरीबन खर्च कर रहा है आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल जीडीपी विच दे हैव. 18 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं और 6% उनका है. और अकॉर्डिंगली इसी वजह से इसराइल इज अगेन मेकिंग लॉट ऑफ लीप फ्रॉगिंग इन दिस एरिया. और इफ यू मूव डाउन एंड सी समवे, तो पाकिस्तान की जो बारी आती है, पाकिस्तान आउट ऑफ 50 बिलियन यूएस डॉलर के बजट के अंदर से 2.6 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करता है ऑन टू द R&D. जीडीपी हमें नहीं पता कितनी है, बट ये 0.7% ऑफ द जीडीपी वी स्पेंड ऑन दी. सो हमारा रेशो बहुत कम है
as far as the world average is concerned. So maybe at our level अगर कभी हमें मौका मिले किसी एक डिसीजन मेकिंग स्टेज के ऊपर, तो we must endeavor to raise this standard from 0.7 to at least 2%, ताकि इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में आए। लेकिन एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे मुल्क खर्च तो कर रहे हैं, बट विज़ क्या वो चीज़ उनकी आउटपुट में नज़र भी आ रही कि नहीं। एक तो ना खर्चा कर दें, आप पैसे इंजेक्ट कर दें, बट पैसा इंजेक्ट करना ही सब कुछ नहीं होता। उस पैसे के इंजेक्ट करने के बाद आउटपुट भी उसी रेशो में आनी चाहिए। देन दैट थिंग इट मीन्स कि आप एक्चुअली कोई वेस्टेज नहीं हो रहा सिस्टम में। अब हो सकता है हमारे मुल्क में अगर हम 0.7 से बढ़ा के इसको 6% पे ले जाएं और वो सारे लोग ही खा जाएं, ठीक है, पैसा तो इंजेक्ट कर दिया, बट या कहें सिंसियरिटी से वो पैसा खर्च ना हो, तो अगेन दिस ऑफ नो यूज। सो इस बुनियाद पे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अपना रेशो कम भी इस वजह से रखते हैं कि इंजेक्शन उस लिहाज से होनी चाहिए जिस लिहाज से आउटपुट नजर आए। तो पॉजिटिव पॉइंट पाकिस्तान का ये है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि सालाना तौर पे एक इंडेक्सेशन करता है इकोनॉमीज का, जिसमें वो इनोवेशन इंडेक्सेशन करते हैं कि कोई मुल्क कितना इनोवेटिव है और के लिहाज से ग्रेडिंग करते हैं। तो वो जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान इज मच बेटर प्लेस्ड, बिकॉज वट एवर वी स्पेंड वी इनफैक्ट डिस्प्ले इट एज वेल, वी आर गिविंग बेटर आउटपुट vis the amount of money which we are spending, right? So वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और उसका खैर ये एक यहाँ पे मैंने वेब पेज भी डाला हुआ है। इट इज, हम इसी को यहाँ पे खोल लेते हैं एंड ट्राई टू से, ये प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुछ बात की हुई है। ओके जी, सो इसको हम खोल लेते हैं। लेट मी शेयर इट विद द क्लास एज वेल। अच्छा, ये भी क्लास खत्म होती है तो वी कैन अगेन ज्वाइन, ठीक है जी। सेम लिंक के ऊपर आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करो। लेट मी शेयर दी वर्ल्ड इनोवेशन प्लेटफॉर्म। आई होप अभी वेब पेज आप लोगों को विजिबल हो गया एक। इज इट विजिबल टू एवरीबडी? यस सर। अच्छा जी, देखें ये WIPO के नाम से एक ग्लोबल एजेंसी है, राइट। यू कैन गेट दी डिटेल्स कि ये क्या करते हैं, बट इन ये रैंकिंग करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। तो 2024 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें ये प्योरली पाकिस्तान के बारे में इस वक्त पेज खुला हुआ है, बट आप पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री को देख सकते हैं। तो वी आर एट 91st पोजीशन इन दी टोटल 133 रजिस्टर्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। So, which are featured in the GII, means Global Innovation Index 2024, according to their innovation capabilities, जिसमें 80 इंडिकेटर ये यूज करते हैं। उसको उन्होंने ग्रुप किया हुआ है इनोवेशन इनपुट्स के अंदर और आउटपुट्स के अंदर, इनपुट वर्सेस आउटपुट, और इस तरीके से उन्होंने एक इनोवेशन का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ। तो दिस इज हेयर, पाकिस्तान इज लाइंग समवेयर हेयर। तो ये बाकी कंट्रीज भी यहाँ पे लिंक हो सकते हैं। लाइक टॉप पे अगर आप देखते हो तो इट्स स्विट्जरलैंड, एंड देन इफ यू मूव बैकवर्ड तो ये फ्रांस, जर्मनी, जापान, इसराइल, देखें यहाँ पे कहीं